Have you ever wondered about this thing that why it's always the Rahul Gandhi and Sonia Gandhi and all other Gandhis and Indira Gandhi, they rarely talk about Firoz Gandhi, Firoz Khan or whatever you want to call. Why? इंदिरा गांधी के हस्बैंड के बारे में ना के बराबर सुना होगा, ना के बराबर। रोड्स नहीं मिलेंगे उनके नाम पे। कभी देखा फिरोज गांधी स्पोर्ट्स क्लब, फिरोज गांधी रोड, एक आधा बाई चांस हो तो हो, नहीं तो नहीं मिलेगा। इट इज सेड कमला नेहरू, वाइफ ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, एंड फिरोज कुड हैव बीन समवेयर इन्वॉल्वड। Kamala Nehru was leader at that time, investing in colleges and all. Firoz Gandhi or Firoz Khan at that time was a young college leader. So somehow, somewhere, maybe they are like this. This is one of the reasons जो मुझे लगता है 1947 आजादी सिर्फ इसलिए नहीं मिल गई थी कि okay we were there and we did a lot of stuff. It became very hard for England to control us. Why? Because England had to invest a lot of army and money in India, and it was the time of competition in Europe. Germany, France, सब लोग आगे चल रहे थे। वहाँ पे माहौल after Second World War ended in 1945. They understood America was colony of England and America surpassed England. France, one of the great countries, strongest country. France is far better and stronger country. न्यूक्लियर पावर में फ्रांस नंबर 3 या नंबर 4 पे है, रशिया अमेरिका के बाद। इधर नंबर 3 और नंबर 4। Then Italy, Germany, other countries. England had to maintain its own standard in Europe, and all these countries, they were protesting, fighting against. Indians also learned after the World War II that we can fight back. So they knew this, that we are not going to control them in an easy way. It's not that much, and moreover, what we wanted, we already have looted. So let's leave. फिर उन्होंने धीरे-धीरे वहाँ से हटना शुरू कर दिया, क्योंकि लगातार revolutions होने वाले थे। और ऐसा नहीं है। ऐसा क्या हुआ? Immediately 1947 में अंग्रेज भाग गए। Immediately क्या हुआ? पता है, इंडिया पाकिस्तान का जो पार्टीशन है ना, again it is not my topic actually, but I have read, so I can tell you. It's not because of Gandhi or it's not because of 1%, 2%. People use those references for their political purposes. ठीक है? गांधी जी ने खुद कहा था कि मैं विभाजन नहीं दूंगा, होगा तो मेरी मौत पे होगा। कलकत्ता में दंगे हुए थे, हिंदू मुस्लिम दंगे, गांधी जी रोए थे उस पे। अच्छा, it was not in just hand of Gandhi. He was an old man. Gandhi was an old man, 1869 born. तो जब 1869 का जो आदमी पैदा हुआ, वो 1947 में किस एज में होगा? 1948 he was shot dead. So आपको लगता है कि 70-80 साल का बुड्ढा जो है वो कंट्रोल कर देगा इतना? प्रॉब्लम ये हो रही थी, जिन्ना एंड नेहरू, they both wanted power. It was obvious that with Hindu majority, Nehru will control. एंड नेहरू के साथ सपोर्ट में वल्लभ भाई पटेल और 3-4 बड़े लीडर्स थे। जिन्ना के पास वो कंट्रोल नहीं था, वो सपोर्ट नहीं था। दे बोथ अप्रोच माउंटबेटन, दे जस्ट फाइनलाइज्ड अ रिपोर्ट दैट बात तो सही है, माइनॉरिटी इशू क्रिएट हो जाएगा, ये हो जाएगा, सो लेट्स गिव देम सम सेपरेट स्टेट। एंड इंडिया वाज नॉट अ यूनिफाइड स्टेट एट दैट टाइम। इंडिया वाज ऑलरेडी डिवाइडेड इन मल्टीपल प्रोविंसेस। तो जब कोई कहता है ना कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ है, हिंदुस्तान उसमें पहले हिंदुस्तान था कहाँ? जो भी 547 रियासतें थी, तो पहली बात तो हिंदुस्तान था ही नहीं। ये भी ध्यान रखना, कोई भड़काए ना, तो पहली बात तो हिंदुस्तान था ही नहीं वहां, वो सिर्फ रियासतें थी, बहुत सारी रियासतें। दे नेवर वांटेड टू कम विद इंडिया, इंक्लूडिंग गुजरात, जूनागढ़, हैदराबाद। इंडिया में नहीं आना चाहते थे। कश्मीर, ये सब नहीं आना चाहते थे। हैदराबाद का निजाम इतना अमीर था कि अगर वो पाकिस्तान चला जाता तो पाकिस्तान की हालत बहुत अच्छी हो जाती। उसको डरा धमका के, घेरा डाल के इसको लिया। वल्लभ भाई पटेल, he did a great job, he's an iron man, no doubt, लौह पुरुष। Politics, Mountbatten and Britishers wanted to control. उन्हें पता था कि हम टोटल नहीं छोड़ रहे हैं। We are showing them that we have left you, but we didn't. So they wanted to have that control. They got them separated. When you got them separated, both India and Pakistan, they were totally dependent on England and America. हमारी हेल्प करो, सोल्जर्स दो, हथियार दो। तो ये इनिशियल चीज जो है ना, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ वन मैन। और लाइक फ्यू डेज बैक 2 अक्टूबर, तो वन ऑफ माई नेबर्स शी वाज राइटिंग समथिंग इन द ग्रुप, गांधी ने ये कर दिया, गांधी ने, अच्छा हुआ गांधी को गोली पड़ गई। चलो ठीक है, अच्छा हुआ गांधी को गोली पड़ गई, ठीक है। पूरी दुनिया प्रेज करती है, लादेन को तो नहीं करती। इट्स नॉट ओनली साउथ अफ्रीका, एवरीवेयर। If you hate Gandhi, it means you have not read him. Simple. अगर आपने गांधी को नहीं पढ़ा है, आप आराम से हेट कर सकते हो। यूथ नॉर्मली हेट करता है गांधी को, क्योंकि उन्हें वो माइंडसेट दिया जाता है, भगत सिंह को हीरो बनाया जाता है। और इफ यू जस्ट ब्लाइंडली अप्रिशिएट भगत सिंह, इट मीन्स तुमने भगत सिंह को भी नहीं पढ़ा है।
फिर आपने भगत सिंह को भी ठीक से नहीं पढ़ा है. ही इज अ गुड मैन, ग्रेट मैन, नो डाउट. लेकिन भगत सिंह की सिर्फ उतनी आइडियोलॉजी यूज की जाती है दैट यू आर यूथ, ड्रॉप अ बॉम्ब एंड लेट्स ब्रिंग अ चेंज. नो, बॉम्ब्स नेवर ब्रिंग चेंज. एन आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड. आपको अगर शांति चाहिए तो शांति के तरीकों से ही होगी. आज आप एक को गोली मार दोगे, वो 2 साल बाद आपको गोली मार देगा. कल परसों एक केस हुआ है ना, 22 साल के बाद बेटे ने बाप का बदला लिया. उसके बाप को किसी पड़ोसी ने ट्रक से दबा के मार दिया. वो बेटा 8 साल का था, 22 साल उसने ढूंढा उसको कहां है वो, और जाके ट्रक से उसको मार दिया. तो खत्म तो नहीं हुई. अब जो उसका बेटा होगा उसको ढूंढेगा, किसी न किसी खून खोलेगा. भगत सिंह के कुछ विचार ऐसे हैं जो आपको कोई नहीं बता रहा. HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन को HSRA किसने बनाया था? भगत सिंह ने. सोशलिस्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल भगत सिंह वाज टोटली अगेंस्ट हिंदू मुस्लिम इश्यूज. ही सिंपली सेड लिव टुगेदर. तो ये आपको कोई नहीं बताएगा. भगत सिंह के बहुत सारे विचार थे जो करंट गवर्नमेंट के हिसाब से बहुत उनके खिलाफ है. ऐसे बहुत सारे विचार थे कि ये थ्रेट है, अगर ये पार्टी सत्ता में आती है, ये पार्टी पावर में आएगी, ये थ्रेट है. तो वो फिल्म में सिर्फ कांग्रेस को दिखाते हैं, दूसरे को नहीं दिखाते. दूसरे को भी उन्होंने बोला लीव दिस. उधम सिंह. But all you know about Udham Singh is that okay, he was the one, he took revenge of Jallianwala Bagh and shot dead General Dyer. Do you know the court proceeding of Udham Singh? It's still not publicized. Public में नहीं है. उधम सिंह के स्पीचेस, उधम सिंह के जो वहां पे कोर्ट में दिए गए बयान है, वो अभी भी इंडिया में पब्लिक नहीं पढ़ सकती. यू कांट रीड. गवर्नमेंट कंट्रोल है. व्हाई? माय बैड. मैंने कोरोना के चक्कर में सबको ढूंढ के पढ़ दिया. मैं घर में खाली बैठा था, मैंने सारे डेकोइट्स की बायोग्राफीज पढ़ी, सारे गैंगस्टर की बायोग्राफी पढ़ी. टाइगर मैनन को टाइगर मैनन क्यों कहते हैं, सब कुछ पढ़ा. उन सब के अंदर मैंने सारे लीडर्स पढ़े, पॉलिटिशियंस पढ़े, बैठे बैठे. कोरोना 2 साल मैंने बहुत पढ़ा है, और ये मैंने लिटरेचर से हटके भी पढ़ा है. उधम सिंह वॉज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू इंडियन इंडिपेंडेंस. ही वॉज द मेंबर ऑफ गदर पार्टी, करंट डे खालिस्तान. उनके बहुत सारे विचार इससे रिलेटेड हैं, इसलिए यहां पब्लिक नहीं है, क्योंकि उधम सिंह हीरो है, जनरल डायर को गोली मार के हीरो है. अब जैसे आप उनके विचार लेके आओगे, सो दैट विल बी एक्चुअली प्रो खालिस्तान मूवमेंट. पब्लिक में नहीं आएगा. सुभाष चंद्र बोस, उनकी डेथ गवर्नमेंट को पता है, गवर्नमेंट नोज इट, बट वो भी पब्लिक में नहीं आएगी बिकॉज ऑफ द डील्स. British government, when they were setting India free, it was not like this that okay, tomorrow onwards you are free. There were many documentations, बहुत सारे rules regulations के साथ. You will not do this, you will not do that. One of, and it's not, I didn't read it anywhere. There's a professor, we were talking, and he said that there are certain things, certain theories. One of that theory I'm telling you. One of that theory is that Subhash Chandra Bose was not fighting for independence, he raised a war. British government ने क्या बोला कि he was not fighting as a citizen, so we cannot call you revolutionary. He brought army from other countries, he raised a war. For us he is a war criminal. So if India is freed and Bose is found alive, India will have to hand over us. हमें Bose को आपको देना पड़ेगा. I idolize him, he was a great man. आई जस्ट इमेजिन कि उनका 1% भी एनर्जी मेरे पास हो, आप दुनिया में दूसरे देश में जाके एक आर्मी लेके आ जाते हो, बहुत बड़ी बात. तो उन्होंने क्या बोला कि वो हमारा वॉर क्रिमिनल है. सो वी लीव इंडिया एंड देन यू फाइंड सुभाष चंद्र बोस इन 1948, 49 एंड ही इज देयर. ब्रिंग हिम बैक. अच्छा, सेकेंड थिंग, द पॉलिटिशियंस ऑल्सो, बिकॉज इफ बोस गेट्स रिकॉग्नाइज्ड आफ्टर 1947 दैट ही इज द मैन बिहाइंड, ही इज गोइंग टू बी द पीएम. फिर कोई नेहरू प्रधानमंत्री नहीं बनता, किसी भी हाल में नहीं बनता. इवन इफ नेहरू इज ऑल्सो ग्रेट, वल्लभ भाई पटेल वाज ग्रेट एंड अदर वाज, दे वर ऑल ग्रेट, राइट. बट सुभाष चंद्र बोस के सामने मैं बिना सोचे वोट दूंगा. अगर मुझे चूज करना है, मैं सुभाष चंद्र बोस को वोट डाल दूंगा. यार असली मैन तो ये है, क्योंकि नॉलेज है, प्रैक्टिकल नॉलेज भी है, एफर्ट्स भी लगा रहा है, एनर्जी भी लगा रहा है. एक अकेला आदमी इंडिया से भाग के अफगानिस्तान के रास्ते रशिया चला गया, रशिया से वो जर्मनी चला गया, सिंगापुर चला गया, और वहां से पूरी आर्मी बना के ले आया. वो अपने आप में हीरो है. तो बाकी लीडर्स को क्या था
कि अगर हम ज़्यादा उसको हीरो बना के चढ़ा दें या बाई चांस हम ले आए सामने तो यू आर गॉन। एंड सुभाष चंद्र बोस वॉज नॉट हैप्पी विद करंट डे कांग्रेस पॉलिटिशियंस। ना वो नेहरू से खुश थे, ना वो गांधी जी से खुश थे। और ये भी के लोग कहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस और गांधी दुश्मन थे, दुश्मन नहीं थे। ही वॉज नॉट हैप्पी विद गांधीयन फिलोसफी। ही बिलीव्ड इन अ स्ट्रॉन्ग रिवोल्यूशन, गांधी बिलीव्ड इन अ पीसफुल रिवोल्यूशन। गांधी जी को बापू सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने ही कहा था, और जब आर्मी बनी थी तो भी सबसे पहले उन्होंने एड्रेस महात्मा गांधी को ही किया था। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बताई गई, नहीं बताई गई। एक स्टोरी है कि लॉर्ड माउंटबेटन की वाइफ एडविना माउंटबेटन के साथ नेहरू का अफेयर था। एक स्टोरी, आई विल नॉट कंफर्म। हाँ, ऐसा बहुत कुछ है।